Good morning, student. Good morning, sir. Good morning, sir. Any idea about the last lecture? Anyone? Euler's theorem. Yes, Euler's theorem. We have discussed about the Euler's theorem on Saturday, I think. Am I right? Yes, sir. Okay, so we have completed that topic also. Complete हो गया था ना वो भी? Yes, sir. Okay, so Yes, today sir. today we are going to discuss about the next topic of the unit 4, and that is the chain rule. About the chain rule, so you can see here third 4.1 is completed, 4.2 is also completed. Now we go for the 4.3. It is chain rule. Okay, so what do you mean by chain rule in total derivative? Anyone? टोटल डेरिवेटिव में चेन रूल क्या है? First derivative of outer function, then inner function, and go on. Yes, very good. Okay, so that means if you have the composition of two function, then you can use the chain rule. Okay, same thing is here for partial derivative. Chain rule for function of two independent variables means अगर two independent variables है तो उसके लिए chain rule कैसे use करना है, that is the first case. So you can see here z is the function of x and y, and x is the function of t and y is the function of t. So how you can find the del z upon del t or del z upon del x? Okay, so you can see here if z is equal to f of x y is differentiable and x is equal to x of t means function of t and y is the function of t are differentiable function of t, then z is a differentiable function of t and means अगर आपको 1 2 3 में जाना है, if you say this is 1, this is 2 and this is 3, and if you want to find 1 2 3 then you have to pass through x and y. okay, means वाया वाया आपको जाना पड़ेगा तब जाके आप थर्ड तक सीधा पहुंच सकते हो. तो यहाँ पे देखो t and df by dt or dz by dt, total derivative is that. okay, d means total, so del z upon del x, पहले आप क्या करो del z upon del x फाइंड करो. यहाँ पे टोटल है, एक ही वेरिएबल के ऊपर है तो हम जानते हैं कि एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होता है, तब हम d कर देते हैं तो dx by dt, और यहाँ पे सेम del z by del y एंड यहाँ पे dy by dt बिकॉज y ओनली डिपेंड ऑन टी, एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है. जब एक ही वेरिएबल पे होता है तो हमारा टोटल डेरिवेटिव तो है ही ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, तो यहाँ पे उसका भी यूज होगा. तो इफ यू वांट टू फाइंड द टोटल डेरिवेटिव ऑफ dz to dt is equal to multiplication of these two, that means del z by del x into dx by dt plus del z by del y into dy by dt. So this is the chain rule for two independent variables. So is there any doubt in this? No, sir. No, sir. What about others? No, sir. Okay, then next Sir. chain rule for functions of three independent variables. We are talking about two independent, now we go for the three independent variables. So the situation is like this. okay, means u is the function of x, y and z, and if you want to find the dz by dt, or x is the function of t, y is the function of t and z is the function of only t, then you can go through the x y z. That means first you find del u by del x, dx by dt, क्योंकि एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है. यहाँ पे del u by del y, dy by dt, and third one is del u by del z, and here dz by dt. So if you want to find the du by dt, then you have to write directly as per the above, but
three variables. So here if you f of x y z is differentiable and x is equal to x of t, y is equal to y of t, z is equal to z of t are differentiable functions of t, then u is a differentiable function of t, and df by dt or du by dt is equal to del u by del x into dx by dt plus del u by del y into dy by dt plus del u by del z into dz by dt. So this is the chain rule for three independent variables. So is there any doubt in this slide? No, sir. So these are the situation. Okay, जब भी आपको एग्जाम्पल में ऐसी सिचुएशन दिखाई दे, then you have to go through this formula. If you have the three independent variables, then go through this formula. Okay, so these are the derivation only. So chain rule for functions of one independent variable and two intermediate variables means एक independent है and two intermediate है. तो यहाँ पे देखो, that means z is the function of x. But x is the function of r and s. So how you can find the derivative of z with respect to r and s? So यहाँ पे if z is equal to f of x and x is equal to g of rs, then z has partial derivatives with respect to r and s given by the formulas del z by del r. मुझे ये 1 2 3 फाइंड करना है. del z by del r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे टोटल आएगा. देखो एक ही वेरिएबल है तो dz by dx होगा एंड यहाँ पे दो के ऊपर है, दैट मींस del x by del r होगा. इफ यू गो फॉर द s, देन dz by dx into del x by del s. क्लियर? सो इज देयर एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. No, sir. Then we go for the next situation. Chain rule for function of two independent variables and two intermediate variables. Means यहाँ पे two independence में बीच में two होंगे और यहाँ पे intermediate two होंगे. Okay? तो यहाँ पे देखो, yes. That means z is the function of x, y. These are the intermediate and rs are the independent variable क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. तो यहाँ पे आपको z to r जाना है या फिर z to s जाना है, तो how we can find the derivative of that? So if z is equal to f of x y and x is equal to g of rs and y is equal to h of rs, then z has partial derivative with respect to r and s given by the formulas del z by del r. मीन्स यहाँ से आपको del z by del r होगा is equal to del z by del x into del z by del r. जैसे हमने आगे किया था ऐसे, यहाँ पे दो के ऊपर डिपेंड है तो यहाँ पर del ही रहेगा, यहाँ पर भी del z by del y ही रहेगा, यहाँ पर भी x and y दोनों दो के ऊपर डिपेंड है, दैट मीन्स del x by del r एंड यहाँ पे del y by del s. क्लियर? दोनों ही दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट होगा. del x by del s भी पॉसिबल है, यहाँ पे del y by del s भी पॉसिबल है क्योंकि वो इंडिविजुअल एक के ऊपर ही नहीं है, वो दोनों के ऊपर है. x डिपेंड्स ऑन r and s बोथ एंड y डिपेंड्स ऑन r s, तो दोनों के विद रिस्पेक्ट आप फाइंड कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे कैसे लिखना है देखो, del z by del r फॉर एग्जांपल इफ यू गो फॉर द del z by del r, सो del z by del x into del x by del r प्लस del z by del y into del y by del r. मीन्स आपको सिर्फ r वाले जितने हैं उतना का डिस्कस करना है. तो यहाँ पर भी r वाला ये है, यहाँ पर भी r वाला, तो del z by del x into this one plus del z by del y into this one. Clear? And if you go for the del z by del s, then only discuss about the s. So del z by del x is common, so del z by del x into del x by del s plus del z by del y into del y by del s. Done? Anybody? Any doubt? No, sir. देखिए सिर्फ सिचुएशन याद रखो तो ऑटोमेटिकली वो तो याद आ ही जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट सिचुएशन इज चेन रूल फॉर फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड थ्री इंटरमीडिएट. दैट मींस बीच में थ्री वेरिएबल्स आएंगे. तो देखो यहाँ पे u इज द फंक्शन ऑफ x, y and z and x, y and z तीनों rs के ऊपर डिपेंड है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे देखो, सपोज दैट
तब भी हमको पार्शियल डेरिवेटिव मिलेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए। सो सपोज दैट u इज इक्वल टू f ऑफ x y z एंड x इज इक्वल टू g ऑफ rs एंड y इज h ऑफ rs and z is equal to k of rs means functions है यहाँ पे। if all four functions are differentiable then u has a partial derivative with respect to r and s given by the formulas del u by del r equal to del u by del x into del x by del r plus del u by del y into del y by del r plus del u by del z into del z by del r. And same way del u by del s is equal to del u by del x into del x by del s plus del u by del y into del y by del s plus del u by del z into del z by del s means प्रीवियस जो फॉर्मूला था उसी को थर्ड वेरिएबल के लिए एक्सटेंड कर दिया। जब r के विथ रिस्पेक्ट टू है तो एवरीवेयर यू हैव टू राइट डाउन r, not discuss about the s, and whenever if you talk about s then you go for the s only. Is it clear everybody? What about others? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then we go for the example. हाँ, अगर आपने सिचुएशन अच्छी तरीके से समझ लिया then example is very simple for you because you have to find some partial derivative and club it. Okay, so find df by dt at t is equal to 0. So this is come later. Okay, ये तो बाद में आएगा t is equal to 0. First we have to find df by dt. For a function f of xy is equal to x cos y plus e raised to x sin y, where x is equal to t square plus 1, y is equal to t cube plus t. तो यहाँ पे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना है, तो फिगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे है कि नहीं, यस यहाँ पे है, देखो यहाँ पे फिगर पहले ड्रॉ करेंगे तो f इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो ये आपको फिगर कंपल्सरी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखो f इज द फंक्शन ऑफ x एंड y क्योंकि f में x एंड y दोनों ही है। ओके, नाउ x इज द फंक्शन ऑफ t ओनली, तो यहाँ पे t आपको राइट डाउन करना है। y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पे y t के साथ चलेगा। तो यहाँ पे जब भी आपको df by dx df by dt फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो राइट साइड पे है लेफ्ट साइड पे दोनों का वो प्रोडक्ट करके एडिशन कर दो। दैट मींस del f upon del x into dx by dt प्लस del f upon del y into dy by dt। अब क्या करना है, तो इंडिविजुअली ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करो एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज योर df by dt। आर यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो यहाँ पे मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा del f upon del x। तो del f upon del x क्या होगा, कौन बताएगा? इसी का मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो x करना है तो cos y इज कॉमन क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा उसके लिए। अब x का 1 हो जाएगा तो 1 प्लस e रेज टू x का e रेज टू x एंड sin y तो x के लिए कांस्टेंट है, सो दिस इज माय del f by del x। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. नाउ सेकंड इज dx by dt, क्योंकि मुझे dx by dt चाहिए, तो चलो यहाँ पे नंबर ही दे देता हूँ 1 2 3 एंड 4। मुझे ये 4 सिर्फ फाइंड करना है और सब्स्टिट्यूट करना है। तो dx by dt, तो x मेरा है t स्क्वायर प्लस 1, तो उसका dx by dt करूंगा तो 2t ओके प्लस 0। Then next one is del f by del y. So what is my del f by del y? With respect to y करना है, तो x उसके लिए keep as it is, cos y का हो जाएगा माइनस sin y, तो माइनस sin y प्लस e raised to x as it is रहेगा क्योंकि उसके लिए वो कांस्टेंट है y के लिए, और sin y का cos y हो जाएगा। So this is my third differentiation. Next dy by dt, so dy by dt means y का with respect to x टोटल डेरिवेटिव, तो t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस t का हो जाएगा 1, सो प्लस 1 डन। सो अब ये जो 4 वैल्यूज हैं, जो भी हमने डेरिवेटिव्स फाइंड किए पार्शियल एंड टोटल, वो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 रिप्लेस करना है और थोड़ा उसका एक्सपेंशन करना है। जो भी मिलेगा दैट इज योर df by dt, एंड जो df by dt है उसमें आपको t is equal to 0 रिप्लेस करना है, दैट इज योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी?
Is it clear, everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. सो वही का वही यहाँ पे किया, देखो जो दिया है पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे. सो हियर f of x y is equal to x cos y plus e raised to x sin y, where x is equal to t square plus 1, y is equal to dq plus t. Then number 1 फाइंड करेंगे del f upon del x, del f upon del y, dx upon dt, dy upon dt. So we have all four derivatives. Then now df by dt is equal to del f upon del x into dx by dt plus del f upon del y into dy by dt. यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो. Now by chain rule, okay, this one, okay, then del f by del x means what I have, cos y plus e raised to x sin y, dx by dt means 2t plus del f upon del y means minus x sin y plus e raised to x cos y, and dy by dt means 3t square plus 1. ओके, अब एट t इज इक्वल टू 0 आपको फाइंड करना है. तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, x एंड y होना चाहिए, तब जाके आप एवरीवेयर रिप्लेस कर पाएंगे. यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. तो जब भी t 0 है तब x क्या होगा मेरा, 0 plus 1, तो यहाँ पे x 1 हो जाएगा. एंड y क्या होगा, सो 0 plus 0, तो 0 हो जाएगा. तो t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0. हमारा जो आंसर है df by dt का, उसमें हम रिप्लेस करेंगे. तो व्हाट आई हैव, सो df by dt एट t इज इक्वल टू 0, cos 0 plus e raised to 1 sin 0 into 2 into 0 plus minus 1 sin 0 plus e raised to 1 cos 0 3 into 0 plus 1. So if you solve that, then cos 0 means 1, e raised to 1 means e, sin 0 means 0. यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा. So minus 1 into 0 plus e raised to 1 means e, cos 0 means 1, and यहाँ पे 0 plus 1 means 1. तो यहाँ पे देखो ये तो टोटल 0 ही हो गया है, क्योंकि 0 into something it gives me 0. Now this is also 0, क्योंकि minus 1 into 0 0 है. अब e into 1 e into 1, तो e हमारा आंसर आएगा. Is it clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Any question regarding this example? No, sir. Okay. Then we go for next. Find df by dt at t is equal to 0 for a function f of x y z is equal to x cube plus x z square plus y cube plus x y z. तो यहाँ पे अगर आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि व्हाट इज माय चेन रूल. तो यहाँ पे x y z, ओके, क्योंकि f is the function of x y z. yes, x is the function of t, y is the function of t, and z is the function of, okay. The similar case is there for 3 variable. तो यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन होगा. नाउ यू वांट टू फाइंड द df by dt, मींस यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो व्हाट इज माय फार्मूला, सो df by dt इज इक्वल टू क्या होगा, पहले मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे पार्शियल मिलेगा, एंड यहाँ पे मेरा टोटल हो जाएगा dx by dt प्लस नेक्स्ट del f by del y into dy by dt plus del f by del z into dz by dt. Okay, so this is my formula. Now I want to find at t is equal to 0. तो t is equal to 0 के लिए x मेरा क्या होगा, e raised to 0, e raised to 0 means 1, y is equal to cos 0, cos 0 means 1, and z is equal to 0 हो जाएगा क्योंकि t is equal to 0. Now you have to find only these 6 terms. Number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. If you find all these 6 terms, then you have to replace in this formula, and then you have to go for the df by dt at t is equal to 0 as per the previous example. So is there any doubt in the flow of the example? No, sir. ओके, तो इफ यू रिप्लेस वन बाय वन, तो यहाँ पे देखो df by dx, df by dx क्या होगा मेरा, कौन बताएगा? चलो बताओ. Plus YZ. Plus yz, yes, very good. That means 3x square plus x means 1, z square, इसका 0 और यहाँ पे yz.
नाउ dx by dt मीन्स e रेज टू t एज इट इज ही मिलेगा मुझे, प्लस डेल एफ बाई डेल वाई। तो डेल एफ बाई डेल वाई क्या होगा मेरे लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड 0, यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस एक्स जेड एंड यहाँ पे नेक्स्ट dy बाई डी टी गिव्स मी cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो फर्स्ट 0 सेकंड का 2x जेड प्लस एक्स वाई into dz by dt means 3t square. Now replace t is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to 0 in this answer. So we have 3 plus 0 plus 0 e raised to t means e raised to 0 plus 3y means 3 plus 0 into minus sin 0 प्लस 2 0 है वो, तो z 0 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा x इंटू वाई 1 इंटू 1 एंड यहाँ पे 0। तो यू हैव 3 इंटू 1 ई रेज टू 0 मीन्स 1, यहाँ पे तो 0 ही होगा क्योंकि साइन 0 इज 0 एंड यहाँ पर भी 0 मिलेगा। सो योर आंसर इज 3। सो इज देयर एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? No, sir. Okay, so No, you sir. can also see in our presentation, जो हमने जो दिया था वो लिख दिया, df upon dx फाइंड किया, del f upon del y, del f upon del z, dx upon dt, dz upon dt, dy upon dt, all we have find. Okay, then सीधा simplify करके उसमें substitute कर दिया, then we find the from t is equal to 0 x y z and substitute in this, then we have the answer 3. Okay. Any question? No, No, sir. sir. What about others? Give me confirmation. Oh, sir. Then next one is example number 3. If z is equal to f of ax plus by, then prove that. Okay, we have to prove that b into del z by del x minus a into del z by del y is equal to 0, where a and b are constant. कैसे करेंगे कोई बताएगा मुझे? Anybody? यस और नो तो बताओ, कोई आइडिया है तो बताओ, नहीं तो नो बताओ। एनी आइडिया? स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल क्लियरली? Yes, sir. ओके, तो आइडिया बताओ। चलो अब ऑडिबल हो तो बताओ तो सही कि एनी आइडिया है तो बताओ, नहीं तो फिर हम सीधा डिस्कस करते हैं। यस सर पहले डेल z बाई डेल x ढूंढेंगे और Yes. फिर डेल z बाई डेल y ढूंढेंगे और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। RHS इक्वल टू LHS आया तो फिर प्रूफ हो गया। लेकिन डेल जेड बाई डेल एक्स फाइंड करने के लिए हमको कोई चेन रूल तो यूज करना पड़ेगा ना, तो कौन सा चेन रूल यूज करेंगे? z अपॉन f करेंगे ना ये इक्वेशन? नहीं, देखो उसमें ऐसा है, z इज द फंक्शन ऑफ f, है ना, एंड f इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? दिख रहा है? तो यहाँ पे आपको इस हिसाब से जाना पड़ेगा। क्लियर? तो पहले इसके लिए टोटल होगा, इसके लिए पार्शियल, इसके लिए टोटल, इसके लिए पार्शियल। डन? क्लियर एवरीबॉडी? फिगर पता चल गया? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे देखो z इज इक्वल टू एफ ऑफ यू लिया उन्होंने और u को बोल दिया ax प्लस by। तो यहाँ पे f की जगह पे हम हमारा u आ जाएगा। तो देखो डेल u बाई डेल एक्स हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? a, डेल u बाई डेल y फाइंड करेंगे तो b। तो वो हमने फाइंड कर दिया। देखो यहाँ पे f की जगह पे u बोल दिया ना, यहाँ पे क्योंकि u में चला गया इसलिए। सो z इज इक्वल टू z u x y, हमने जो बोला था वही का वही आया। अब आपको सिर्फ उसी हिसाब से सोचना है कि मुझे आई वांट टू फाइंड डेल z बाय डेल x, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू, एंड इफ यू गो फॉर द डेल z बाय डेल y देन मल्टीप्लाई दिस। तो यहाँ पे देखो नाउ
डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। हमने किया था ये केस, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे dz बाई डी यू, क्योंकि z u के ऊपर डिपेंड है लेकिन कोई गिवन फंक्शन नहीं है, पर्टिकुलर कोई फंक्शन नहीं है, तो उसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि वी कैन नॉट फाइंड फ्रॉम दिस डेटा। सो यहाँ पे dz बाई डी यू एज इट इज रहेगा, लेकिन डेल u बाई डेल x हमारे पास है, दैट इज a। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा a इंटू dz बाई डी यू। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Clear or can I repeat it? Clear. सर क्लियर। Okay, okay. Then next सेम तरीके से डेल जेड बाई डेल वाई फाइंड करेंगे, तो डी जेड बाई डी यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई। सो डी जेड बाई डी यू इंटू बी हो जाएगा, सो बी इंटू डी जेड बाई डी यू। तो अब जैसे ये दोनों की वैल्यू LHS में रिप्लेस करेंगे तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस a इंटू डेल जेड बाई डेल वाई, दैट इज माई LHS। सो b इंटू यहाँ पे a इंटू डी जेड बाई डी यू, क्योंकि यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स मेरा a इंटू डी जेड बाई डी यू है, माइनस a डेल जेड बाई डेल वाई होगा b इंटू डी जेड बाई डी यू। सो ए बी डी जेड बाई डी यू माइनस ए बी डी जेड बाई डी यू। सो इफ यू check here both have the plus minus, so it is 0 is equal to RHS, hence proof। Okay, so is there any confusion or any doubt in this example? No, sir. सर पहले 3 स्टेप एक्सप्लेन करा, पहले 3 स्टेप। सॉरी, पहले 3 स्टेप क्या करूं, रिपीट करूं? यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो हमको दिया था, यहाँ पे जो ब्रैकेट में था उसको मैंने नया नेम दे दिया, इट इज माई u। सो u इज इक्वल टू x प्लस बी हुआ। तो सिचुएशन कैसा हुआ, z इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो जब हम ऐसे सिचुएशन के साथ डील करते हैं तो इतना पार्ट जो है वो टोटली किसके लिए चला जाएगा, x के लिए, एंड इतना जो पार्ट है वो टोटली चला जाएगा y के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वे में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू फाइंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो क्या होगा मेरा डी जेड बाई डी यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, बस इतना ही होगा, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो डी जेड बाई डी यू जो है उसका z से हमको ये सीधा कुछ आंसर नहीं मिला है, क्योंकि z हम सीधा लिख रहे हैं z इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। सो वी हैव नो एनी फाइनल वैल्यू, तो उसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि उसका कुछ अभी हमको मिल नहीं रहा है। अब डेल यू बाई डेल एक्स ऑलरेडी है, तो वी पुट हियर द वैल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, तो a रख दिया। सो a इंटू डी जेड बाई डी यू। सेम तरीके से हम डेल जेड बाई डेल वाई में सोचे तो इसका कुछ अभी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी कीप एज इट इज। ओके, और यहाँ पे डेल यू बाई डेल वाई जो है वो मेरा b मिल रहा है, तो b इंटू डी जेड बाई डी यू। तो आई सब्स्टिट्यूट बोथ दिस वैल्यूज इन गिवन LHS, then I have the is equal to 0, which is my RHS. Now is it clear? यस सर। Okay, so then next example number 4. Okay, think about the chain rule. कौन सा chain rule यूज करेंगे, चलो बताओ इसमें। कौन बताएगा? सर यस, सर इसमें z, उसके बाद x एंड y, यस, वेरी गुड। और फिर x में u और v, और फिर y में भी u और v। Okay, that is like this. हाँ तो यहाँ पे देखो, अब मुझे क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा वो यहाँ पे आपको जो भी डिडक्शन दिया है उसमें देखना है, मीन जो भी हमको प्रूव करना है उसमें। सो आई वांट टू फाइंड डेल एफ अपॉन डेल यू। ओके, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू ही f है, तो यहाँ f भी ले सकते हो आप, लेकिन क्योंकि आपको f ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे f में दिया है। अगर z में होता तो z में करते, यहाँ पे f दिया है तो f से हम स्टार्ट करेंगे। तो f टू मुझे u जाना है, तो कैसे मिलेगा मुझे, एनीबॉडी, कैसे फाइंड कर सकते? हाँ, डेल Del- x बाई डेल x वेरी गुड। इंटू डेल x बाई डेल u dx plus dy। डेल एक्स बाई डेल यू, वेरी गुड। उसके बाद
बस इतना ही। नहीं आगे होगा लेकिन याद नहीं आ रहा है। नहीं देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और थोड़ा बड़े पाए पे यहाँ पे देखो ताकि आपको पता चले एक्स वाई। ओके, और यहाँ पे है आपके पास यू एंड वी दोनों। तो सीधा ऐसे सोचो पहले, तो मुझे डेल एफ यहाँ पे टोटल तो नहीं आएगा क्योंकि दो वेरिएबल के साथ डील कर रहे हैं, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स यहाँ पे लिख दिया, डेल एफ अपॉन डेल वाई यहाँ पे लिख दिया। नाउ एक्स के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू एंड यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल यू। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो यहाँ पे y के पास भी दो पॉसिबिलिटी है, डेल y by डेल u and डेल y by डेल v. Now if I want to discuss about the f to u, then go for only u both way. Okay, तो यहाँ पे for example I want to find डेल f upon डेल u. So what is my answer? So डेल f upon डेल x तो फिक्स है, उसके साथ सिर्फ u वाला लेना है, that means डेल x by डेल u प्लस उसी साइड से जाएगा डेल f अपॉन डेल y इनटू सिर्फ u वाला, तो डेल u बाय डेल y बाय डेल u। ओके, सेम तरीके से डेल f अपॉन डेल v मुझे फाइंड करना है, तो क्या होगा v के लिए? सो डेल f अपॉन डेल x अपॉन डेल v, क्योंकि v वाले पहले डिस्कस करूंगा सिर्फ ओनली डेल f अपॉन डेल y इनटू डेल y अपॉन डेल v। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। तो मुझे कितने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा? हाउ मेनी पार्शियल डेरिवेटिव्स वी हैव टू फाइंड? 8। यस सर। ओके, तो लेकिन 8 में से हमको थोड़े बहुत तो फाइंड ही नहीं करना है। देखो कैसे, सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, तो यहाँ पे कुछ दिया है रिलेशन नहीं है ना, तो उसको एज इट इज रखेंगे। सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स एज इट इज। अब डेल एक्स अपॉन डेल यू हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एक्स इज वी हैव। ओके, तो डेल यू करेंगे तो क्या मिलेगा? 2e रेज टू 2u, और इसका तो 0 हो जाएगा, तो वी कैप। ओके, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई, नो आंसर वी हैव, सो कीप एज इट इज। ओके, डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन डेल यू, यस वी कैन फाइंड, तो यहाँ पे मिलेगा -2, क्या होगा? e रेज टू -2u। ओके, तो यहाँ से 2 आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास मिलेगा e रेज टू 2u। ओके, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस, सॉरी माइनस, नॉट प्लस, माइनस। ओके, सो माइनस e raised to -2u del f upon del y. Okay, so this is my del f upon del u. Now if you talk about this, then del f upon del x, no answer we have, into del x upon del v क्या होगा? तो again -2 e raised to -2v. Okay, plus del f upon del y, no answer we have, keep as it is. Del y upon del v, so 2 e raised to 2v, क्योंकि u वाला तो आगे वाला 0 ही होगा, सो 2 यहाँ पे बाहर, यहाँ पे माइनस e रेज टू -2v इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, प्लस यहाँ पे 2 बाहर चला गया है तो e रेज टू 2v इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई। सो इज देयर एनी डाउट अप टू हियर? एनीबॉडी? नो सर। यस सर। Okay, then if you go for the next LHS, okay, तो LHS से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो LHS इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल यू माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी, तो रिप्लेस डेल एफ अपॉन डेल यू हियर, सो आई हैव 2e रेज टू 2u डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस 2e रेज टू -2u डेल एफ अपॉन डेल वाई -2 e रेज टू -2v, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, इनटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एंड ये प्लस, ये माइनस है बीच में इसलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू ई रेज टू 2v डेल एफ अपॉन डेल वाई। ओके, सो यहाँ पे देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स को साथ में करो, तो यहाँ पे 2 ई रेज टू 2u प्लस 2 ई रेज टू -2v डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस
ओके यहाँ पे अगर आप डेल एफ अपॉन डेल वाई को साथ में करते हैं तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होगा 2 इंटू ई रेस टू माइनस 2 यू, क्योंकि माइनस बाहर चला गया है और यहाँ पर भी माइनस बाहर चला तो प्लस 2 ई रेस टू 2v बचेगा। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो व्हाट वी हैव 2 बाहर चला गया तो ई रेस टू 2u प्लस ई रेस टू माइनस 2v दैट इज माय x। सो x डेल एफ अपॉन डेल x हुआ माइनस यहाँ से भी 2 बाहर चला जाएगा तो e रेस टू माइनस 2u u है ना 2u प्लस 2 e रेस टू माइनस 2v तो 2 तो बाहर चला गया तो e रेस टू माइनस 2u प्लस e रेस टू 2v इट इज बाय y डेल एफ अपॉन डेल y। और इसमें से 2 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो x डेल एफ अपॉन डेल x माइनस y डेल एफ अपॉन डेल y दैट इज माय RHS। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, ओके sir. आप ये डिफाइन कर सकते हो ना? सिर्फ ये फिगर आप बनाना है आपको और चेक करना है कि मैं इसे कैसे इसको डिफाइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके इफ यू डन इट देन द एग्जांपल इज वेरी सिंपल फॉर यू। So you can see here in our presentation also they find all these required differentiation and then substitute in our formulas. So 2e raised to 2u then equation 1 del f upon del v that is equation number 2. Okay and if you replace both in LHS and solve that then del f upon del u minus del f upon del v means 2x del f upon del x minus y del f upon del y. So RHS is equal to LHS. Clear everybody? Is there any doubt in this example? No, sir. No, What sir. about others? Quick response. No, sir. Okay. No, sir. So we go for the next situation, next example. So W is equal to f of u. That means W is the function of u and v. Yes. Okay. Then and u is the function of xy and v is the also function of xy. Yes. The same situation is there. Clear? Yes, Then sir. prove that आपको प्रूव दैट करना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल यू होल स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल बी होल स्क्वायर। सेम सिचुएशन है तो यहाँ पे हम सीधा डिस्कस कर लेंगे प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे देखो W is equal to f of uv and u is the function u is equal to square root x square plus y square and v is equal to cot inverse y by x. Okay then del u by del x is equal to क्या होगा? So 1 upon 2 root x होता है तो 1 upon 2 square root x square plus y square and x square का 2x y square का 0 तो यहाँ पे 2x तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। So we have x upon square root x square plus y square। डेल u by डेल y करेंगे तो 1 upon 2 square root x square plus y square 2 कैंसिल हो जाएगा। So y upon square root x square plus y square डेल b by डेल x। So डेल b by डेल x करेंगे तो minus 1 upon 1 plus x square जैसा होता है फॉर्मूला में। तो यहाँ पे y x की जगह पे y by x टोटल है तो minus 1 upon 1 plus y by x whole square into minus y upon x square क्योंकि 1 upon x क्या होगा minus 1 upon x square। तो यहाँ पे x square ऊपर चला जाएगा LCM होके तो minus x square upon x square plus y square minus y upon x square will be cancel out minus minus plus so y upon x square plus y square we have then del v upon del y so minus 1 upon 1 plus y by x whole square यहाँ पे y का 1 हो जाएगा 1 upon x is there so again if you take LCM then minus x square upon x square plus y square 1 upon x so x will be cancel out here only one x is cancel out so minus x upon x square plus y square. Now if you think about the chain rule then this is your situation जैसे आगे किया था वही का वही है then now del f upon del x is equal to del f upon del u into del u by del x plus del f upon del v by del x क्योंकि this part is only for x okay तो x के बारे में ही सोचना है तो यहाँ पे x वाला हो गया। अब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1 by 1 सो del f upon del u
नो वी हैव, हमारे पास है ही नहीं, डेल यू बाई डेल एक्स है तो उसको सिर्फ रिप्लेस करेंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल यू एज इट इज एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज माय डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी, नो आंसर वी हैव, डेल वी बाई डेल एक्स वो हमने फाइंड किया है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज माय इक्वेशन 1. सेम वे del f upon del y is equal to del f upon del u into del u by del y plus del f upon del v del v by del y. This is only for y, so this is the y part. Okay, तो यहाँ पे del f upon del u रिप्लेस करना है तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, del u by del y की जगह पे जो भी मिला है वो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, so y upon square root of x square plus y square del u by del y square, तो ये रहा. Okay, minus del f upon del v as it is. Now del v by del y is minus x upon x square plus y square, so यहाँ पे माइनस मैंने बाहर रख दिया, तो ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2. So is there any doubt up to here? No, sir. No, sir. Okay, then next स्क्वायर करना है एंड ऐड करना है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर, दैट इज अवर एलएचएस. तो यहाँ पे आप एलएचएस इक्वल टू भी लिख सकते हो, एलएचएस इक्वल टू दिस वन. अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो मिला था उसको स्क्वायर कर दिया, डेल एफ अपॉन डेल वाई मिला था उसको भी स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद इंडिविजुअली जो हम जानते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, वो मेथड को यहाँ पे अप्लाई किया, वो फॉर्मूला को, तो डेल एफ अपॉन डेल यू होल स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म. ओके, तो वो यहाँ पे रिप्लेस किया प्लस सेकंड स्क्वायर, दैट मींस डेल एफ अपॉन डेल वी होल स्क्वायर इनटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके, सो दिस इज अवर square of first, then square of second is this one, same way we can define this. Okay, so if you club them, that means del f upon del u whole square. Okay, तो यहाँ पे देखो x square upon, यहाँ पे स्क्वायर रूट चला गया, del f upon del v whole square y square upon x square plus y square whole square हो गया. अब यहाँ पे del f upon del u होल स्क्वायर सेकंड में से आया, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर del f अपॉन del v होल स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर. अब मिडिल टर्म जो है वो प्लस माइनस है, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी के जितने 4 टर्म है वो यहाँ पे रिमेनिंग 4 टर्म हमने यहाँ पे लिख दी. अब उसमें से अगर आप देखेंगे तो del f अपॉन del u होल स्क्वायर del f अपॉन del u होल स्क्वायर आप क्लब कर सकते हो, सेम तरीके से del f अपॉन del v होल स्क्वायर del f अपॉन del v होल स्क्वायर वो उसको भी क्लब कर सकते हो. सो इफ यू क्लब देम देन यू हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे एक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे पूरा कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ओके, उन्होंने जिस हिसाब से मांगा हुआ उसी हिसाब से जाएंगे, तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर उन्होंने कॉमन लिया है, तो अगर कॉमन लेते हो तो व्हाट वी हैव, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू del f अपॉन del v होल स्क्वायर, क्योंकि एक कम होगा है ना इसीलिए, प्लस del f अपॉन del v होल स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो मिला कि नहीं चेक कर लेते हैं, एक मिनट. यस, ओके, जो हमको प्रूव करना था वो हमको मिल गया. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? एनी कंफ्यूजन? No, sir. चलो नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल सोचते हैं. इफ u is equal to f of x minus y, y minus z, z minus x, then prove that del u by del x plus del u by del y plus del u by del z is equal to 0. सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं कि ये तीन हमको फाइंड करना है, लेकिन व्हाट इज आवर सिचुएशन, सिचुएशन क्या है वो पहले हमको स्टडी करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखो आपको कॉमा 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 करके दिया है, तो पहले को मैं अगर u बोल दूं, सेकंड को v एंड इसको w, तो व्हाट इज माय सिचुएशन, u is the function of u v w एंड सॉरी u तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे u ऑलरेडी है, तो उसकी जगह पे नया नोटेशन लेते हैं. चलो एलिमेंट कर देते हैं, चल सकता है कि नहीं? ओके, तो इसको मैं एलिमेंट ले लेता हूँ. सो आई कंसीडर, क्योंकि u ऑलरेडी ऊपर है इसलिए. ओके, तो यहाँ पे होगा मेरा, यस, दिस इज माय l m n. तो u is the function of l m n and l is the function of x y. Okay, m is the function of y z है ना, and n is the function of z x. Okay, तो ऐसा बोल सकता हूँ कि they are the function of x y z.
यस और नो? कॉमन लिखना है तो यस सर। ओके तो यहाँ पे एक्स वाई जेड हुआ, एलिमेंट हुआ, तो अब क्या हुआ, जो सेकंड हमने एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल किया उसी को 3 वेरिएबल के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है ना। तो यहाँ पे देखो तो r इज इक्वल ओके उन्होंने आर एस टी लिया है, तो r इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एस इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, टी इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स एंड u इज द फंक्शन ऑफ आर एस टी. So if you find del r upon del x, then 1, del r upon del y minus 1, del r upon del z 0. Okay. Same way, del s upon del x, del s upon del y, del s upon del z, del t by del x, del t by del y, del t by del z. तो उन्होंने फाइंड कर दिया. Now if you think about the situation, then this is our situation. जिसे हमने लिखा है इसे x y z. ओके तो यहाँ पे फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं इसलिए उन्होंने सिर्फ x वाला पार्ट कंसीडर किया. तो डेल u by del x, so del u by del r by del x, del u by del s by del x, del u by del t by del x. ओके तीनों के लिए है r s t तीनों के लिए. ओके अब उसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1 0 -1 हो जाएगा, बाकी का एज इट इज. तो ये 0 वाला चला गया -1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि मेरा del u by del x फाइंड करना था. आई हैव. ओके नाउ नेक्स्ट सिचुएशन y के लिए. तो y के लिए del u by del y फाइंड किया सेम तरीके से. तो वी हैव माइनस del u by del r प्लस del u by del s. एंड इफ यू फाइंड थर्ड del u by del z, then the formula is del u by del z is equal to this one and replace the given partial derivative. So we have del u by del r 0, del u by del s -1, del u by del t 1 into 1. So यहाँ पे minus del u by del s plus del u by del t. Now if you add, yes add ही करना है, तो LHS से स्टार्ट करेंगे तो LHS is equal to del u by del x plus del u by del y plus del u by del z. अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो del u by del r यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स कैंसल. यहाँ पे del u by del t माइनस है और यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स कैंसल. यहाँ पे del u by del s प्लस है एंड del u by del s माइनस है, तो कैंसल. सो सभी कैंसल हो रहा है इसलिए उसका आंसर आ जाएगा 0. ओके सो इज देयर एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? एनीबॉडी? नो सर. नो सर. ओके यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो, नॉट इश्यू. आप यहाँ पे आर एस टी की जगह पे एलिमेंट लेके करेंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है. सिर्फ आपको ये थिंग कंसीडर करना है, दैट इज द फंडामेंटल. ओके नेक्स्ट एग्जांपल. ओके होमवर्क में है तो प्लीज राइट डाउन दिस एग्जांपल. If z is equal to f of xy and x is equal to u cos alpha minus v sin alpha, y is equal to u sin alpha plus v cos alpha, where alpha is constant, then prove that del f upon del u whole square plus del f upon del v whole square is equal to del f upon del x whole square plus del f upon del y whole square. ओके तो यहाँ पे देख लो कहीं पर भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लो. दिस इज द सॉल्यूशन. ओके यहाँ तक देखो चलो पहले. ओके Okay, we have only 1 minute, so we cannot continue more. तो ये सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले लो चलो और उसके बाद देख लेना, अगर डाउट है तो मुझे पूछ लेना. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट इज इट क्लियर? यस यस सर. Yes, sir. ओके और उसके बाद उन्होंने ऐड किया स्क्वायर करके तो उनका आंसर ऐसे आया है. LHS is equal to RHS हो जाता है. Then second is homework. Z is equal to ln u square plus v, u is equal to e raised to x plus y square, v is equal to xy square. So this is also in homework. So please write down this. उसमें भी प्रूव करने के लिए दिया है. जैसे हमने देखा इसे आपको सिचुएशन आइडेंटिफाई करना है, देन गो फॉर द नेक्स्ट टाइम. दोनों को बाद में सब्सट्रैक्शन में डाल दिया. ओके सो दिस इज अवर अबाउट द 4.3. इज देयर एनी डाउट इन टुडेज सेशन? एनीबॉडी? No, sir. हाउ मेनी स्टूडेंट अंडरस्टैंड टुडेज सेशन? प्लीज रेज योर हैंड.
Very good, very good. 47. Okay. So what about other 10? 48. Very good. 49, 50, 51, 52. Vrajesh. Okay. Pranav, Vipul and Ankur. Is there any doubt? Okay, 53. Okay. So this is about 4.3. So good day. Take care.